Hare Krishna. The word Galitam, fallen down, and also liquid and dripping, indicates the extremely ripened state of a fruit. And concerning scriptures, it indicates its very relishable nature as well as its success at bringing out the meaning of scripture in the most skillful manner. वे आगे करेंगे. फोन बंद कर दिया. दरवाजे को बंद कर दीजिए. The word rasam, juice, used in describing a fruit indicates that the fruit is totally without skin, seed, or other defects. Concerning scriptures, it indicates that this scripture is without any inferior parts, stating that the Bhagavatam is the supreme fruit of the tree of the Vedas, indicates that the Bhagavatam is the highest goal of human endeavor. Though the completely sweet fruit is excellent by its nature, in order to convey its supreme position, another excellence is then described. In describing the fruit, an analogy is given. Because of living in the tree, ये parrot वाला हो गया. Alternatively, there is another meaning of alayam. Thus, alayam can mean leading up to prema and including the stage of complete prema. This is because in the Bhagavatam, there are two types of rasa. Though both are filled with affection for the Lord, that which is useful for leading up to the topmost taste, and that which is fully developed in taste for the Lord. Thus it is said in the 12th canto, Katha imas te kathita mahiyasam vitaya lokeshu yasya pareyusam vigyana vairagya vivekasya विभो वचो विभूतिर न तु पारमार्थायम यथ तुत्तः मह श्लोक गुणानुवादः संगीयते अभीक्षणम् अमंगलग्नः त्वम् एव नित्यं शृणुयाद अभीक्षणम् कृष्णे अमलं भक्तिम अभिपश्यमानः. O mighty Parikshit, I have related to you the narrations of all these great kings, who spread their fame throughout the world and then departed. O mighty Parikshit, I have related to you the narrations of all these great kings who spread their fame throughout the world and then departed. My real purpose was to teach transcendental knowledge and renunciation. Stories of kings lend power and opulence to these narrations, but in themselves do not constitute the ultimate aspect of knowledge. 12.3.14. The person who desires pure devotional service to Lord Krishna should hear the narrations of Lord Uttama Shloka's glorious qualities, the constant chanting of which destroys everything inauspicious. The devotee should engage in such listening in regular daily assemblies and should continue his hearing throughout the day. पूरा दिन भर भगवान उत्तम श्लोक यानी भगवान कृष्ण जो कि उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका ग्लोरिफिकेशन होता है, उनके ग्लोरिफिकेशंस सबको चाहिए कि पूरा दिन भर पढ़े, एक बार पढ़े, दैनिक पढ़े और दिन भर इसको सुनते रहें. The verse having described that Bhagavatam
has the general nature of rasa, then indicates the more particular nature of that rasa, which with the word amritam. Amrita refers to sweetness or rasa of the Lord's pastimes. In the 12th canto, this speciality of the Bhagavatam is mentioned. From beginning to end, the Srimad Bhagavatam is full of narrations that encourage renunciation of material life, as well as nectarian accounts of Lord Hari's transcendental pastimes, which give ecstasy to the Atma Ramas who relish nectar. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. श्रीमद् भागवतम जो है वो भरा पड़ा है, is full of narrations that encourage renunciation of material life. भौतिक जगत से मुक्ति, भौतिक जीवन से मुक्ति के लिए का जो व्याख्या है, इन चीजों से भागवत भरा पड़ा है. सिर्फ इतना ही नहीं है, जो डिटैचमेंट है, फ्रीडम है फ्रॉम मटेरियल लाइफ, मटेरियल भौतिक जीवन, सिर्फ यही नहीं है भागवतम में. भागवतम में साथ ही साथ there are nectarian narrations, nectarian accounts of Lord Hari's transcendental pastimes. भगवान की मधुर लीलाओं का भी काफी विस्तार में व्याख्या है. ये मधुर लीलाएं भगवान की ऐसी हैं कि जो कि उन योगियों को जो आत्माराम है, स्वयं में तृप्त हैं, सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको भी लाद, उनको भी खुशी दिलाता है, उनको भी उनके जीवन में भी अमृत घोलता है. सो स्पिरिचुअल लाइफ में दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक है मेटेरियल लाइफ से रिनाउंसिएशन, दूसरा है स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ अट्रैक्शन. सिर्फ रिनाउंसिएशन करने से काम नहीं चलेगा. सो भागवत इज फुल ऑफ नरेशंस दैट एनकरेज रिनाउंसिएशन ऑफ मेटेरियल लाइफ. मेटेरियल लाइफ से पूरी तरह से मुक्ति, डिटैचमेंट, वैराग, भागवत में ऐसे नरेशंस भरे पड़े हैं ऊपर से लेकर नीचे तक. परंतु साथ ही साथ भगवान हरि की जो मधुर लीलाएं हैं, उनको, उनकी व्याख्या है, ऐसी लीलाएं हैं वो जो कि आत्मारामों को भी आनंद प्रदान करती है. सो हमें अपने जीवन में दोनों चीज करना है, मेटेरियल लाइफ से डिटैचमेंट भी करना है और भगवान के प्रति अटैचमेंट भी करना है. द वर्ड सत refers to the Atmaramas. The same meaning is found in other places such as Itahang, Sattang, Sattang Brahma, Sukhan, Bhutya. He is the source of Brahman effulgence for Gyanis. Desiring to merge into the effulgence, into that effulgence, these Atmaramas are also called Suraha in the verse Sat Suraha, because they taste only nectar. क्या चल रहा था उसे? बहुत कुछ ना कुछ आवाज पे आवाज चला जा रहा है, इधर फोन बजता है, उधर फोन बजता है. These Atmaramas are also called Suraha because they taste only nectar. Furthermore, one should equate the real sweetness of Bhagavatam with Krishna's pastimes, as indicated in the following quotation. श्रीमद् भागवतम का जो मिठास है, हमें समझना है कि वो असल में भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं के कारण वो मिठास आया है. भागवतम 12.4.40. For a person who is suffering in the fire of countless miseries and who desires to cross the insurmountable ocean of material existence, अगर आप अनगिनत दुखों की अग्नि में झुलस रहे हैं एवं आप भौतिक संसार का जो सागर है इसको पार करना चाहते हैं, तो there is no suitable boat except that of cultivating devotion to the transcendental taste for the narrations of the Supreme Personality of Godhead's pastimes. So अगर आपको लगता है, समझ आ रहा है कि आप अनगिनत दुखों में झुलस रहे हैं एवं भौतिक संसार का जो महासागर है इसको आपको पार करना है, तो फिर आपके पास और किसी नौका, नैया, नौका का, बोट का
उपाय नहीं है इसके अलावा कि आप वो वाला नौका सिलेक्ट करें, उस नौका पे चढ़ें जो कि भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा की जो रस से भरी हुई लीलाएं हैं उसको सुनने का स्वाद जिसमें मिले, उस नौका में चढ़ना चाहिए। यानी अगर जीवन दुखों से झुलस रहा है, हर समय लगता है कि आग लगी हुई है जीवन में, अगर नहीं पता चल रहा है दैट मीन्स हम अंधे हैं, हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि हो तो सबके साथ रहा है। तो हमको पहले तो देखना पड़ेगा कि जीवन में दुखों का आग अग्नि लगी हुई है। जो मॉर्निंग में मंगल आरती गाते हैं उसमें भी तो पहला सेंटेंस ये होता है, संसार दावा अनल लीडलो का। सो संसार जो है ये दावा अनल है, फॉरेस्ट फायर के बराबर है। तो हर रोज सुबह सुबह पहला स्टेटमेंट तो यही बोलना है, संसार दावा अनल। और ये भागवतम में बताया गया है 12वें स्कंद के 4 अध्याय के 40वें श्लोक में कि जब व्यक्ति को दिखने लग जाए कि उसका जीवन अनगिनत दुखों से झुलस रहा है, उसमें इच्छा जागती है कि वो संसार के महासागर को, छोटे से सागर को नहीं, महासागर को पार करके भौतिक जीवन से बाहर निकले, भौतिक जीवन का जो चक्र है इससे बाहर निकले। तो उसको एक नाव का सहारा लेना पड़ेगा, और सारे नाव ये काम नहीं कराएंगे, सिर्फ वही वाला नाव ये काम करवाएगा जिस नाव में भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान की जो मधुर रस से भरी हुई लीलाएं हैं उसका श्रवण यहाँ पे होता है। तो वो हो गया भागवतम। भागवतम में भगवान की रस से भरी लीलाओं का श्रवण मिलता है। However, by using the word drava, liquid, juice, essence, with Amrita, the Bhagavatam is described as having the very essence of sweet pastimes. This should be explained as follows. Though the rasa composed of Preeti is the best, there is some distinction in this. There are two types of experiences of that rasa. Those who are taught about rasa, they are ordered to drink the nectar of Bhagavatam, and those who are natural experiences, being participants in the law, in the pastimes of the Lord. So दो प्रकार के हो सकते हैं लोग, एक जो कि जिनको आदेश मिला हुआ है कि भागवतन का अध्ययन करो, इससे तुमको रस का आस्वादन मिलेगा, और दूसरे वो जो ऑलरेडी इसमें लिप्त हैं, आध्यात्मिक जगत के हैं और भगवान के मधुर लीलाओं का के रस का आस्वादन ऑलरेडी किए जा रहे हैं, जिनको सिखाया जा रहा है। यानी वो क्या है, साधना भक्ति के दो पार्ट्स हैं, वैदिक साधना, रागानुगा, रागात्मिका। हाँ, रागानुगा और रागात्मिका। रागानुगा जिनको सिखाया गया है और अभी वो राग का अनुगमन कर रहे हैं, जो रागात्मिका हैं उनका, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, और दूसरे राग राग में लिप्त हैं।
ओके, वेरी सॉरी, बीच में और प्रॉब्लम होने के कारण रुकना पड़ा. वी आर कंटिन्यूइंग. O saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendence, yet I was still attracted by the delineation of the pastimes of the Lord, who is described by the enlightened verses. ये है 1.2.227 नेक्टर ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु का. In a similar way, it is said in the second canto, O saintly king, Srimad Bhagavatam 2.1.9 से, I was certainly situated perfectly in, yet I was still attracted delineation of the pastimes of the Lord, who is described by enlightened verses. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री में, अच्छा, जीवा गोस्वामी अपने कमेंट्री में कहते हैं, निर्गुणा becomes nairgunya, indicating self-interest. It refers to absorption in the impersonal Brahman. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कमेंट्री में, you are the famous Sukadev, being fixed in realization of the Brahman from birth, you left the house and wandered about. You could not even learn anything from your father. Why is it that you speak now? This verse answers, though fixed in Brahman, my heart was attracted by the pastimes of the Lord. I am the proof that the pastimes of the Lord are sweeter than realization of Brahman. अभी आगे जाते हैं. Association with like-minded, affectionate devotees. लिया था? यही वाला, हाँ, ये चीज. हाँ, वन पेज नंबर 6. भक्तों की सेवा करना, कार्तिक में भक्ति करना, भक्तों के बीच भागवत पाठ, ये हो गया. प्रगत भक्तों की संगति करना, पेज नंबर 108. अच्छा, वो करते समय ये रुक गया था ना. श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम में डिफरेंस क्या है? भगवद गीता जो है वो भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं. तो भगवद गीता में भगवान खुद खुद की व्याख्या कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान के क्वालिटीज, गुण भगवान खुद व्याख्या कर रहे हैं. ये है भगवद गीता. जबकि श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान के भक्त बता रहे हैं कि भगवान कौन है, क्या है. तो भगवान जब अपने गुण और लीलाओं का व्याख्या करेंगे तो कितना कर सकते हैं. ये शिष्टाचार ये बताता है, कोई अपनी तारीफ हर समय नहीं कर सकता. कर थोड़ा बहुत बताने के लिए बता देगा कि भाई मैं ऐसा ऐसा हूं, क्योंकि अगर भगवान अपने बारे में नहीं बताए तो हमको पता कहां से चलेगा, क्योंकि भगवान को कोई समझ नहीं सकता. तो भगवान थोड़ा बहुत बता देते हैं अपने बारे में कि भाई मैं सुप्रीम लॉर्ड हूँ, मैं परम पुरुषोत्तम हूँ, मेरा ये गुण है, मैं ऐसा ऐसा हूँ, तुम ऐसे ऐसे हो, ऐसा बोल के फिर भगवान चले गए, टाटा बाय बाय, घर चले गए. थोड़ा सा अपने बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, काफी दिया, उसी से लोगों का जीवन बदल जाता है. क्योंकि ये भगवान की खुद के मुखारविंद से निकले हुए बातें हैं और भगवान अपने बारे में बता रहे हैं. भगवत गीता पढ़ के लोग भक्त बन जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका मायने है. परंतु फिर भी भगवान खुद अपनी व्याख्या कर रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा नहीं बोलते, वो थोड़ा बहुत बोल बाल के बंद हो जाते हैं, बस चुप हो जाते हैं. परंतु श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान के भक्त भगवान के गुणगान का व्याख्या कर रहे हैं. और भगवान के भक्त कौन है? जिन्होंने भगवान के गुण लीलाओं का, माधुरी का, उसको आस्वाद कर लिया है, गलित हो चुके हैं, वो गल चुके हैं उसके अंदर. अभी उसी को वो खुद जो मिठास उन्होंने अनुभव किया है उसको प्रेमवश वो व्याख्या कर रहे हैं. तो भगवान का जो मिठास है वो अब और ज्यादा मीठा हो जाता है भागवतम में. ये डिफरेंस है भगवत गीता में और भागवतम में. भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनको लिमिट्स में रहने की जरूरत नहीं है, वो एकदम दिल खोल के पूरी बात को बता सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना हेजिटेशन के.
बाहर से कोई कह रहा है हरे कृष्णा। भक्तों के बीच भागवत का पाठ सेवा करना, ये वाला करते हैं, प्रगत भक्तों की संगति करना। हम इस मेन बुक के हिसाब से चलते हैं आगे। समाज श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सत गोस्वामी स्थिति बताया था। सूत गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले वाले या भवसागर में से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। चैतन्य चरितमृत में इसी का एक सिमिलर वर्स आता है। साधु संग सर्व शास्त्र कय, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो भागवत में बताया गया है कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले या भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त हैं उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी इसकी क्षमता नहीं कर सकता। हरि भक्ति शुद्धोदय में प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालाप आता है जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इस प्रकार संबोधित करता है। हे पुत्र, हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ हैं, वैसे ही घटना घटेगी। इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वह यह है कि यदि पुरुष वीरवान है और स्त्री रोगी नहीं है तो उनके संभोग से गर्भ धारण होगा। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान तथा प्रामाणिक हैं तो परिणाम उत्तम होंगे। Association with like-minded affectionate devotees is illustrated in the first canto 1.18.13. The value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot be compared even to the attainment of heavenly planets or liberation from matter. What then to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which are meant for those who are destined to die? तुल्यामा लवेनापि, एक लव मात्र का भी, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न अपूर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उतासहि उतासिसः। जीव गोस्वामी का कमेंट्री इसी पर। भगवत संगी संग मीन्स एसोसिएशन विद पर्सन्स हु आर अटैच्ड टू द लॉर्ड। भगवत संगी जो है उनका संग। संग मीन्स अटैचमेंट and he who constantly has that attachment to the Lord is called संगी। संग का मतलब होता है संग करना, आसक्ति के साथ, बहुत अटैचमेंट के साथ एसोसिएट करना। और जो इस प्रकार से कॉन्स्टेंटली है भगवान के संपर्क में उसे कहा जाएगा संगी, संग किया हुआ। Even a moment's association with such a person cannot be compared to the attaining of heavenly planets. In praising association of devotees, the sages at Naimisaranya show that they have also a similar desire for the association of devotees. The verse is used here as an example since it acts as a good instruction for others. The affectionate nature of devotees
snigdha should be implied from the verse. One should also see a similar verse in fourth canto, चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के 97वें नंबर श्लोक में बताया गया है भागवतम के। कृष्ण आराधेनापि कृष्ण आराधेनापि तुलये न स्वर्गम न पुर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किम उत्सिसः। ओह, 1.8.18.13 है। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किम उतासिसः। 4:24-57 कृष्णाराधनापि तुलये न स्वर्गम न पुर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किम उतासिसः। यानी डिफरेंस क्या है? चौथे स्कंद में है तुल्याम लवेनापि, और यह सॉरी पहले स्कंद में, और चौथे स्कंद में ये कन्वर्ट होकर बन जाता है कृष्ण आराधनापि तुल्य। तो यहाँ पे था तुल्याम लवेनापि और यहाँ पर है कृष्ण आराधनापि तुल्य। If one by chance associates with a devotee, even for a fraction of a moment, he no longer has any attraction for the result of karma or jnana. What interest then can he have in the benedictions of the demigods who are subject to the laws of birth and death? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई एसोसिएट्स विद अ डिवोटी, शुद्ध भक्त का किस्मत से अगर एक पल भर के लिए संग मिल जाए, he no longer has any attraction for the results of कर्म और ज्ञान। ज्ञान का जो फल है उस पे उसका जो आसक्ति है वो खत्म हो जाता है, और वो क्या हो जाता है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम हो जाता है, ज्ञान और कर्म से अनावृत हो जाता है। This verse explains, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, this verse explains how much we should speak of the glories of the great ocean of association with such great devotees who have become visible in front of us. We should not compare a moment's association with devotees who are attached to the Lord with Swarga, the result of karma, or liberation, the results of jnana. We cannot compare at all that association with the worldly blessings of men in this world, such as kingdom. इस जगत में लोग शायद आशीर्वाद दे दें या कृपा कर दें और एक बड़े से साम्राज्य का राजा बना दें हमको, उसके साथ भी इसका कोई तुलना नहीं होता है। That is because by the association of the devotees, the sprout of bhakti, which is rare, it appears, प्रकट हो जाता है। We should not even compare the complete results of karma or jnana with a moment's association with a devotee or with a small particle of sadhana bhakti. कर्म और ज्ञान का जो फल है, जो संपूर्ण फल है, उसकी हम तुलना तक नहीं कर सकते एक पल भर के और एवं एक पार्टिकल मात्र के साधना भक्ति के साथ। साधना भक्ति का अगर एक पार्टिकल मिल जाता है, पार्टिकल क्या होगा? एक एटम से भी छोटा कुछ होगा, काल्पनिक चीज, क्योंकि एटम से छोटा कुछ नहीं है। अणु, अणु एटम को कहते हैं, अणु से छोटा कुछ नहीं होता है, पर अगर कुछ हो तो अणु से भी छोटा, उतना छोटा सा अगर साधना भक्ति मिल जाता है तो ये इतना महान है कि ज्ञान का परिपूर्णता, कर्म का परिपूर्णता भी उसके सामने टिक नहीं सकता। या तो साधना भक्ति का एक पार्टिकल, एक अंश, एक अणु का अंश, नहीं तो एक भक्त का एक पल भर का सानिध्य, ये ज्ञान के परिपूर्णता को, कर्म के परिपूर्णता को तुच्छ बना देता है। What then to speak of devotee association for long duration? Or even more, what to speak of bhakti
results from that association. फिर हम क्या कह सकें एक भक्त का संग जो कि बहुत लंबे समय तक के लिए है या उससे भी ज्यादा, भक्त के संगत से जो भक्ति होती है उस भक्ति के कंपैरिजन में सब क्या है? ज्ञान और कर्म का परिपूर्णता, कुछ भी नहीं. Even more, what can we say about attaining prema which is a result of bhakti? और भक्ति की बातें क्या है? भक्ति का जो परिपूर्णता है, प्रेम, कृष्ण प्रेम, उसका तुलना शुरू भी कहां होता है? ज्ञान और कर्म के परिपूर्णता से के मुकाबले. These comparisons are suggested in the verse. The imperative form of the verse is used for supposition. Since it is used in a negative, the meaning is that we should not even imagine a comparison between devotee association and the other items, just as one could never compare Mount Meru to a mustard seed. एक बार प्रभुपाद जी एरोप्लेन में जा रहे थे तो सत्स्वरूप महाराज पास में बैठे थे, उनके साइड में. प्रभुपाद जी ने अचानक उचक के सत्स्वरूप महाराज को कहा, मैंने अभी अभी माउंट मेरू देखा. प्रभुपाद जी को दिखा था माउंट मेरू एरोप्लेन की खिड़की से. फिर महाराज देखते कि उनको कुछ नहीं दिखा. माउंट मेरू के ऊपर इंद्रलोक है सेंटर में, और चार तरफ दूसरे 4 देवताओं के लोक हैं. यानी एवरेस्ट कुछ नहीं है उसके सामने. पूरा हिमालयन पर्वत श्रेणी श्रृंखला जो है वो बहुत छोटा है माउंट मेरू के कंपैरिजन में. तो कहाँ माउंट मेरू और कहाँ मस्टर्ड का एक बीज. मस्टर्ड क्या बोलते हैं? सरसों. सरसों का बीज. Is in the plural number in order to suggest that it is not possible for anyone to disprove this statement, since it is the opinion of many. Association with the devotees who are attached to the Lord may be explained in terms of the following words. Verse 3.31.35 Bhagavatam ka. Thasya bhaven moho bandhas chanya prasangatah yoshit sangat yatha pungsho yatha tat sangi sangatah. The infatuation and bondage which accrue to a man from attachment to any other object is not as complete as that resulting from attachment to a woman, and even from the attachment to the fellowship of men who are fond of women. Just as those who associate with persons attached to women are criticized than those who associate with a woman with a person attached to the Lord is praised more and is more desirable than association with the Lord himself. कुछ महीनों पहले मनुस्मृति की बहुत खिल्ली उड़ाई जा रही थी. एक्चुअली हर साल ही उड़ाई जाती है. क्रिसमस के करीब मनुस्मृति का कुछ अपीयरेंस डे होता है. उस समय पूरा भारतवर्ष में जितने सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं मनुस्मृति का बहुत खिल्ली उड़ाते हैं कि मनुस्मृति में वुमेन के बारे में ऐसा कहा गया है, वुमेन के बारे में ऐसा कहा गया है. तो ये भी उसी कैटेगरी में आ सकता है सूडो इंटेलेक्चुअल्स द्वारा, क्योंकि यहाँ जब वुमेन कहा जा रहा है, यहाँ पे बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में घिरा हुआ एक जीवात्मा जिसको आनंद इंद्रिय तृप्ति जिसका लक्ष्य है उसके बारे में कहा जा रहा है. जीवात्मा के बारे में यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है. सो जीवात्मा, क्योंकि सारे जीवात्मा जो है वो प्रकृति है, एक भी जीवात्मा पुरुष का नहीं है. जीवात्मा मतलब ही प्रकृति यानी फेमिनिन क्वालिटी, और मैस्कुलिन क्वालिटी यानी पुरुष सिर्फ एक ही है, वो है भगवान, जिनको नारायण कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है. सो पुरुष सिर्फ एक ही है, बाकी सब के सब नॉट पुरुष है. नॉट पुरुष यानी प्रकृति. प्रकृति को भौतिक जगत की भाषा में क्या कहा जाता है? स्त्री कहा जाता है, वुमेन कहा जाता है. सो मेटेरियल वर्ल्ड के लैंग्वेज में जो वुमेन कहा गया है वो असल में प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है. और सिंस ये वैदिक स्क्रिप्चर्स है, वैदिक स्क्रिप्चर्स को हमको वैदिक स्क्रिप्चर्स के लैंग्वेज से देखना होगा.
भौतिक जगत के लैंग्वेज से देखने से समझ नहीं आएगा। जैसे भौतिक जगत में किसी अलग अलग भाषाओं में भी होता है, किसी भाषा में कोई शब्द है जिसका मतलब हो गया अ, ये देख लो ना, जो बहुत चिपचिपा होगा उसको इंग्लिश में कहा जाएगा GOO, और बंगाली में उसका मीनिंग कुछ और ही हो जाता है। हाँ, इट इज वेरी गुई, गू। तो वो जो गू है वो बंगाली का गू नहीं है। तो तेलुगु को बंगाली में अगर समझेंगे तो क्या मीनिंग आएगा? तेल ए गु, तेल के अंदर गु है, ता तेलुगु, तेलर मध्य गु। तो वो बंगाली भाषा में आ गया, पर तेलुगु जो शब्द है वो बंगाली भाषा थोड़ी है, तो उसका बंगाली इंटरप्रिटेशन क्यों करे? वो तो तेलुगु भाषा का शब्द है, उस भाषा में इसका मीनिंग कुछ और ही है, कुछ वंडरफुल, कुछ सुंदर सा, कुछ अच्छा सा है। तो बंगाली में उसका मीनिंग देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो उस भाषा का चीज है, ये इस भाषा का चीज थोड़ी ही है। आ, फिर ऐसा करके कई उदाहरण आ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भौतिक जगत की भाषा में वोमेन या स्त्री, इसका मतलब होता है जो शरीर से या क्रोमोसोम्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर भौतिक जगत में जिसको स्त्री कहा जाता है, वोमेन जिसको कहा जाएगा, या प्रकृति जिसको कहा जाएगा। इस और पुरुष, हर जो मैन बॉडी है उसको पुरुष कहा जाएगा। तुम पुरुष हो, मेरे पिताजी पुरुष हैं, मेरा दोस्त पुरुष है, मैं भी पुरुष हूं। पर स्क्रिप्चरली, वैदिक लिटरेचर के हिसाब से मैं कहां से पुरुष हूं? मैं तो पुरुष हूं ही नहीं। पुरुष तो सिर्फ एक है, नहीं है कभी, पूरी सृष्टि में एक ही पुरुष है। पर ये भौतिक जगत की भाषा में बोलने से अजीब सा लगेगा, क्योंकि आंख खोल के देख लो, हर तरफ पुरुष दिखाई देंगे, लिखा होगा पुरुष स्त्री, टॉयलेट के बाहर भी लिखा रहता है पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए। तो ये भौतिक जगत की भाषा है पुरुष, भौतिक जगत की भाषा है स्त्री या वुमेन, मैन। परंतु वैदिक भाषा में पुरुष का सिर्फ एक ही मतलब है, कृष्ण, और कोई नहीं, उनके अलावा कोई नहीं है पुरुष। और बाकी सब क्या है? पुरुष का ऑपोजिट, प्रकृति, यानी वोमेन। तो जब वोमेन कहा जा रहा है, समस्त जीवात्माओं के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ लेडीज के लिए नहीं कहा जा रहा है। वोमेन मतलब समस्त जीवात्मा, एवरीबॉडी, एक भी नहीं जो कि वोमेन नहीं है। यानी हर हाथी भी, हर छिपकली भी, हर जुआ भी, हर आदमी भी, हर बच्चा भी, हर औरत भी, हर गधा भी, गधी भी, सब के सब वोमेन, एक भी नॉन वोमेन नहीं है। अब इस श्लोक को देखा तो फिर थोड़ा वो सब हट जाएगा कि हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू, ये कैसे कह सकते हैं, ये तो दादा आलम के जमाने का बुक्स है, वैदिक लिटरेचर्स, हटाओ इनको, जलाओ इनको, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। किसके बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? पुरुष और प्रकृति के बीच में। क्यों नहीं करें? कहां पुरुष कहां प्रकृति? पुरुष के शरीर के छिद्रों से ब्रह्मांड आते हैं, उस ब्रह्मांड में हजारों करोड़ों अनगिनत प्रकृति जीवात्मा बैठे रहते हैं। तो कहां कंपैरिजन है दोनों के बीच में? वे तो करना ही चाहिए। एक तो वो हो गया, और दूसरा ये कि हम जीवात्मा है, हम ये शरीर वाले वोमेन नहीं है और शरीर वाले पुरुष नहीं है। शरीर वाले वोमेन के साथ इतना ही इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो फिर ये बुक क्यों पढ़ रहे हो? फिर भागवतम पढ़ने की जरूरत क्या है? फिर कुछ और पढ़ो, एनिट ब्लिटन के नॉवेल पढ़ो, या कुछ और पढ़ लो, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ लो, अगर शरीर वाले वोमेन से ही मतलब है तो। जब शरीर वाले वोमेन से मतलब नहीं रह गया है अपने जीवन में, जब हमको आत्मा से मतलब आ गया है, परमात्मा से मतलब आ गया, अब भागवतम को पढ़ना है। तो उस प्रकार से कोई मनुस्मृति का बदनामी करता है, ये करता है, वो करता है, उसको बोलो मनुस्मृति तुम खोल के देख ही क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए है ही नहीं। वहां तो मनु, कौन है मनु, इनको पहले समझो फिर मुंह खोलो तो समस्त मानवों के जो सृष्टि करता है वो है मनु, उनसे मानव हुआ है, और वो बता रहे हैं कि मानव होने का मतलब क्या होता है, ये मनुस्मृति में बताया गया। तो वहां पे मनुस्मृति में जो वुमेन कहा गया है, तो पहले समझो तो सही कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस भाषा में जो कहा जा रहा है उसका मीनिंग समझना होगा।
तो ये भी उसी प्रकार से है कि ओके, तो इस श्लोक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, 3.31.35 का मीनिंग क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर्स, वैदिक वर्ल्ड व्यू, वैदिक धर्म के अनुसार जो व्यक्ति स्त्रियों से अटैच होता है उसे बहुत ही पतित माना जाता है, वुमेन से अटैच्ड है। वुमेन कौन है? वो नहीं जो कि भगवान का भक्ति करने में लगी हुई है। वो वुमेन कहाँ हुई? वो स्त्री कहाँ हुई? वो तो जीवात्मा हो गई। वुमेन बॉडी का मीनिंग क्या होगा? वुमेन बॉडी मतलब वो जो कि इंद्रिय भोग के पीछे हर समय आतुर रहे, जो अपने आप को भगवान समझे। अपने आप को भगवान समझने का मीनिंग क्या है? मेरी सेवा करो, मेरी अर्चना करो, मेरे मुझे पैम्परिंग करो, मेरे आगे पीछे घूमो, मुझे देखते रहो, मुझे प्रेम करते रहो। ये सब तो भगवान वाले गुण है ना, भगवान का क्वालिटीज ये सब है, ये सब वैलिडिटी भगवान के लिए है। पर जो अपने आप को भगवान समझ बैठे, तो वो हो गया वुमेन का डेफिनेशन। सो ये उसके लिए कहा जा रहा है, वो पुरुष जो ऐसे लोगों के पीछे लगा रहा है जिनका शरीर भले ही वुमेन का शरीर हो या मैन का शरीर हो, पर जो अपने आप को भगवान समझ के बैठा है, जिसका कन्विक्शन है कि मैं भगवान हूं, मुझे समय मिलना चाहिए, मेरी पैम्परिंग होनी चाहिए, मेरी सेवा होनी चाहिए, मुझे प्यार मिलना चाहिए, मुझे मेरा केयरिंग होना चाहिए। अ, जैसे हर पिता क्या चाहता है अपनी बेटी के बारे में, ऐसा पति मिले, दामाद मिले जो बेटी को पलकों में बिठा के रखे, यानी सेवा करे, समय दे, बहुत सारा पैसा कमा के लाए और समय दे, सेवा करे, यानी वो बेटी नहीं भगवान है। तो मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भगवत दास है अपनी बेटी के लिए। सो ये वहां पे कहा जा रहा है, डिवोटी स्त्रियों के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये उनके लिए नहीं कहा जा रहा है जो भगवत गामी है, जो भगवान की तरफ जा रहे हैं। जो भगवान की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो खुद को भगवान समझ के दुनिया को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके बारे में कहा जा रहा है। सो वो पुरुष जो ऐसी स्त्रियों के पीछे आकर्षित रहते हैं, उनका संग नहीं, उनको तो उनको बहुत बुरा माना गया है कि वो बहुत ही लो क्वालिटी के इंसान है। और जो ऐसे पुरुषों का संग करता है जो स्त्रियों के पीछे, इंद्रिय भोगी स्त्रियों के पीछे जो भागते हैं, ऐसे लोगों का संग, ऐसे पुरुषों का संग उससे भी ज्यादा घिनौना माना गया है। दैट मीन्स अगर मैं अपनी दोस्ती ऐसे लोगों से करूं जो कामुक स्त्रियों के प्रति काम भावना रखते हैं, तो फिर मेरा पतन निश्चित ही एश्योर्ड है। कोई कामुक स्त्रियों से एसोसिएशन करे वो उतना नुकसानदायक नहीं है जितना नुकसानदायक है उन मूर्खों का संग करना जो इन मूर्खों के प्रति आकर्षित है। ये कहा जा रहा है यहाँ पर, the infatuation and bondage which accrue to a man from attachment to any other object is complete as that resulting from attachment to a woman. woman इस शब्द को डिफाइन करके ये हुआ दैट जीवात्मा, वो वाला सोल जो अपने आप को भगवान समझता है और भगवान को जो फैसिलिटीज मिलने चाहिए ये कन्विंस रहता है वो फैसिलिटीज तो मुझे मिलने चाहिए, और इवन मोर फ्रॉम a fellowship of men who are fond of women, of such women. Just as those who associate with the persons attached to women are criticized more than those who associate with the woman, association with a person attached to the Lord is praised more and is more desirable than association with the Lord himself. तो ठीक उस प्रकार से so basically कलयुग में ये चीज बताना पड़ रहा है, पर कलयुग का नहीं होता, ये श्लोक को सुन के इमीडिएटली समझ आ जाता। जैसे भारतवर्ष में हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो अगर कोई श्लोक है, कोई लेक्चर है, कोई लेसन है जहाँ पे माता पिता के सम्मान की तरीके से कहा जा रहा है कि घर में जो काम वाली बाई है उसको वैसा सम्मान करना चाहिए जैसा माँ को करना चाहिए, भारत में सब लोग समझ जाएंगे क्या इसका मीनिंग है, अलग से समझाना नहीं पड़ेगा। विदेशों में, यूरोप में या किसी दूसरे देश में ये बताना पड़े कि घर में काम करने वाली जो औरत है उसको वैसा सम्मान करना चाहिए जैसा माँ को करते हैं। माँ को क्या करते हैं? सुनो, असल में माँ को भी सम्मान करना चाहिए, अभी वो पहले समझाना पड़ेगा।
ठीक उस प्रकार से ये श्लोक जो है ये कलयुग के लिए नहीं है। ये कलयुग में इसका मीनिंग ही नहीं ठीक तरह से फिट हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जो व्यक्ति स्त्रियों के प्रति, अब मुझे कहना पड़ा इंदिरा होके, नहीं तो अगर मैं सीधा कह दूं कि वुमेन के प्रति तो सुनने में अजीब सा लगता है कि क्या मतलब है, तो ये तो ऑटोमेटिक है। कलयुग में नहीं, दूसरे युगों में ये ऑटोमेटिक मीनिंग है के प्रति जो अटैच्ड है। मतलब कौन से वुमेन के प्रति? जो तुम्हारी माँ है उनके प्रति तुम अटैच हो तो कहा जा रहा है, नो उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। वो जो तुम्हारी बेटी है तुम उसके प्रति अटैच हो, नहीं उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। उसके प्रति तुम अटैच हो, नहीं उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। तुम्हारी चाची है, ठाकुर माँ है, उनके प्रति अटैच हो, नहीं उनके बारे में नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। नहीं पर वो भी तो वोमेन है, हाँ तो ऑब्वियस है ना, उसके बारे में नहीं कहा है। पर वो ऑब्वियस दूसरे युगों में, इस युगों के हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे कहने की, ये बातें आ जाती है। क्योंकि एसोसिएशन ऑफ वुमेन जब कहा गया है, यहाँ पे वुमेन शब्द का क्वालिफायर ये है जो इंद्र भोगी है, जो कामुक है, जो मूर्ख है, जो अपने आप को भगवान समझ के बैठे हैं, जो अपने लिए वो फैसिलिटीज चाहते को मिलना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए। तो ये पार्ट वहां पर द्वापर युग में, हाँ ये तो ऑब्वियस, मैं बोलने का क्या है, यही तो मीनिंग है वुमेन का। नहीं तो क्या, नहीं तो वुमेन थोड़ा कहते हैं, नहीं तो माँ कहते हैं या दादी माँ कहते हैं या बेटी कहते हैं या पत्नी कहते हैं, ऐसा कहते हैं। वुमेन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ह्यूमन लिविंग बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ऐसी स्त्रियों, कामुक स्त्रियों के प्रति अटैचमेंट जो बदनामी देता है, उनके प्रति जो अटैच्ड है उनके प्रति अटैचमेंट उससे भी ज्यादा बदनामी देता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जो भगवान के प्रति जो अटैच्ड है, वो जितना सुख देता है, जितना फायदा देता है, जो भगवान के प्रति जो अटैच्ड है उनके प्रति जो अटैच्ड रहेगा, ये कहा जा रहा है इस श्लोक में। अगला श्लोक हरिभक्ति शुद्धोदय में, यस्य यत् संगति ही पुंसो। ओह 1:25 हो गया, अभी खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो 1.2.229 से कंटिन्यू करेंगे हरि भक्ति शुद्धोदय वाला। ए मैन विल अटेन द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन विथ whom he associates, just as a crystal takes up the color of the object next to it. Therefore the wise man will take shelter of those who have qualities like his prosperity of his family. इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई प्रगत भक्तों की संगति करने का ही हरिशुद्धोदय का जो सेकंड श्लोक है उसका अनुवाद आएगा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाले का। हरे कृष्ण।